Hey guys, good evening everyone. Good evening, good evening, good evening guys. Very 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 good evening to each and every one of you. स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार एंड सुपर ऑसम यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड गाइस स्वागत है सभी का. टुडे वी आर लाइव विद द सेकंड सेशन ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स, जहां कल हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप बेसिक्स और आज उसका है सेकंड सेशन. So guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting and financial management for the past 8 years to the lovely students of the chartered accountancy course. So guys, let's begin our today's session. This is a second session on partnership accounts. सबसे पहले बता दूं about my daily schedule. Guys, मैं रोज सुबह आता हूं आपके सामने live at 7:45 AM on special classes और 8:15 पर मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे YouTube पर. दोस्तों स्पेशल क्लास पर पढ़ा रहा हूं अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो केवल तीन सेशन में हमने पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म करना है, जिसके दो सेशंस ऑलरेडी हो गए. नाउ tomorrow it is going to be the last session of this particular topic and a very very important one, because tomorrow we are going to solve with questions on reconciliation of stock, which is very very important part of this topic. एंड गाइस, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं रोज यूट्यूब पर इन इवनिंग एट 8:15 टू 9:15 PM. गाइस, जिसने भी अभी तक मिशन सक्सेस बैच के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सब्सक्रिप्शन ले लो दोस्तों और देख लो. बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर योर December 21 एग्जामिनेशन. And guys, from day after tomorrow, from Thursday 21st of October, we are starting with new batch of RTP, PYQ और MTP. एक महीने का बैच होगा दोस्तों. बहुत जबरदस्त तरीके से RTP, MTP और PYQ कवर किए जाएंगे by all the 9 educators of the बाहुबली टीम. पूरे एक महीने तक बैच चलेगा दोस्तों. एंड दिस इज द शेड्यूल. टॉकिंग अबाउट माय schedule, I'll be meeting you Thursday, Friday, Saturday from 9:15 to 10:45. 90 minutes session thrice a week I'll be conducting. Guys, these are the subscription prices. 3-month subscription at 9,000, 6-month subscription at 10,800, and 12-month subscription at 14,400. You can avail 10% discount by putting off my code, which is DKJ10. You can also go for iconic subscription, जहाँ आपको मिल रहा है personal coach, printed books, evaluated test series, and discussion channel. The subscription prices are given on your screen. If you want to avail 10% discount, just put on my code DKJ10. Guys, I will recommend you to go, everyone to go for this particular subscription plan, जहां आपको CA इंटर और CA फाउंडेशन का कॉम्बो प्लान मिल रहा है at 22,500 only for 12 months and 28,800 for 24 months. If you want to avail maximum possible discount, just put on my code. Guys, whenever you are buying any subscription, do not forget to use my code. Do like, share, subscribe both these channels. Do join this Telegram channel. And guys, do follow me on Unacademy app अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है. चलो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर. ये प्रीमियर हो रहा है ड्यू टू सम इवेंट. आई एम नॉट एबल टू टेक लाइव लेक्चर टुडे. So this lecture is being premiered today. It is a pre-recorded lecture. If you are having any doubts in this particular lecture, we will take care of it tomorrow. सो गाइस, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया. सबसे पहले हमने देखा वेटेज एनालिसिस, देन वी स्टार्टेड विद दी बर्ड्स आई व्यू और हमने देखा कि क्या क्या हमको इस टॉपिक में पढ़ना है. यस्टरडे वी सॉ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. उसके बाद पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट हमने चेक किए दोस्तों. देन वी स्टार्टेड विद LLP, फीचर्स ऑफ LLP वी स्टडीड. Thereafter, we studied the distinction between partnership firm and LLP. And now, guys, let's start with the very important provisions of Indian Partnership Act with respect to accounting. Very important points. Concentrate. Law does not make it obligatory for the partners to reduce in writing all the terms and conditions. In the absence of any such agreement, the Indian Partnership Act 1932 provide the following provisions. So guys, 1932 एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट जो है, वो हम अप्लाई करेंगे कब? इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. लेट मी टेल यू, पार्टनरशिप फर्म किसके हिसाब से चलेगा? अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड.
And if there is no provision in the partnership deed in relation to accounting treatment, it will be done as per Indian Partnership Act 1932. अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है या बना है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई बात नहीं हो रही है, ईच एंड एवरी पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. No partner is entitled to interest on capital if there is no partnership deed. या partnership deed है but there is no provision of interest on capital. No interest on capital will be given. No interest on drawings to be charged by the firm to the partner. Interest on drawings भी collect नहीं किया जाएगा if there is no provision in the partnership deed. A partner is not entitled to any salary for taking part in the carrying on the firm's business. No salary if there is no provision for payment of salary to the partners in the partnership deed. And last point, a partner is entitled to interest on advances over and above the agreed capital contribution at the rate of 6% per annum. If the partner has given loan to the partnership firm, he will be paid interest at the rate specified in a partnership deed. But if the partnership deed does not contain about the rate of interest to be paid to the partners on their loan, then Partnership Act 1932 पिक्चर में आ जाएगा दोस्तों, जो कहता है कि if there is no provision in the partnership deed, interest on partners loan will be paid at the rate of 6% per annum. So I hope everyone got this. तो क्या पढ़ा हमने? No provision in partnership deed, profits to be shared equally, no interest on capital to be provided, no interest on drawings to be collected, no salary to be given, and interest on loan will be given only at the rate of 6%. I hope everyone got this. Next. And last point guys, every partner being joint owner of partnership is entitled to have equal share in the property. सिर्फ equal share प्रॉफिट में नहीं होगा, प्रॉपर्टी में भी होगा. डिड यू गेट दैट? नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन? पीएल तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस. द रोल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू नो कितना प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इज दैट फाइन? चेक. PL appropriation account is merely an extension of profit and loss account. उसी को carry forward हम लोग करते हैं. It is credited with net profits and interest on drawings. PL appropriation के क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एंड इट विल बी डेबिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, salary, commission to partners if provided under the terms of partnership agreement only. And its balance is transferred to partners' capital or current account in their agreed profit sharing ratio or equally if there is no agreed profit sharing ratio. Very important. So any interest on capital, any salary, and guys, any commission you are paying to the partner is a appropriation of profit. That means profit होगा तो ही पे करेंगे. If there is no profit, it will not be paid. I hope everyone is getting this. Let's see in detail guys. What is the purpose of PL appropriation account? The purpose of PL appropriation account is to show how net profit is to be distributed among the partners. The balance in the profit and loss appropriation account may be used to provide interest on capital only if the partnership deed so provides. To provide salary or commission only if the partnership deed so provides. To transfer profits to general reserve or specific reserve. To distribute the profit among the partners in their profit sharing ratio and to retain the profits in the business by way of playing back of profits. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रोल क्या है? कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बताना. पीएल अप्रोप्रिएशन का रोल क्या है? कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. इज दैट फाइन? नेक्स्ट.
Methods of maintaining partners capital account. Friends, there are two methods of maintaining partners capital account. One is a fluctuating capital method and other is a fixed capital method. The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है दोस्तों, नाम में ही सब कुछ रखा है. When I say that fluctuating capital method, मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट बार बार फ्लक्चुएट होगा. अगर मैं कह रहा हूं फिक्स कैपिटल मेथड, इसका मतलब क्या है, माय कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स, देयर विल बी नो एनी फ्लक्चुएशंस इन इट. So friends, the partner's capital account may be maintained according to the fluctuating capital method or a fixed capital method. What is fluctuating capital method? A single capital account will be made and all the adjustments relating to partner will be recorded in that particular account. Under fluctuating method, only one account, that is a capital account for each partner, is maintained and all the transactions relating to a partner are recorded in his capital account. As a result, the balance in capital account keeps fluctuating. Another is a fixed capital method where capital is fixed and all the fluctuations, all the items like profit, drawings, interest on drawings, salary, commission, these all are recorded in current account. So in fact, fixed capital account, guys, two accounts will be maintained. One will be a capital account and other will be a current account. Under fixed capital method, two accounts, that is capital account and current account for each partner, are maintained. The transactions relating to introduction or withdrawal of capital are recorded in the capital account and other transactions like interest on capital, drawings, salary, commission, share of profit are recorded in current account. As a result of this, the capital account will continue to show the same balances from year to year unless some amount of capital is introduced or withdrawn, while the balances of current account keeps on fluctuating. So in fluctuating capital, only one account will be maintained, and in case of fixed capital method, two ledgers will be maintained, partners capital account and partners current account. All the adjustments will be recorded in current account. कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, फिर ओनली इफ देर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और इफ देर इज अ ड्रॉविंग्स अगेंस्ट कैपिटल. देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रॉविंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉविंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. जो कैपिटल आपने डाला है अगर उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हो परमानेंटली, दैट इज ड्रॉविंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, whereas drawings against profit will be recorded in current account. Next, let's see one by one. First, सबसे पहले देखेंगे interest on capital. What is interest on capital? Interest is generally allowed on capital of the partners. Interest on capital of partners is calculated for the relevant period for which the amount of capital has been used in the business. Partnership firm is using the capital of the partners. And if the partnership firm is using the capital, partnership firm is to pay interest on the capital being used by the partnership firm. Normally, it is charged for full year on the balance of capital at the beginning of the year, unless some fresh capital is introduced during the year. And on the additional capital introduced, interest for the relevant period of utilization is calculated. जितना पैसा partnership firm use करेगा, उस पे एट द रेट डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन और चार्जेबल इन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, इंटरेस्ट इज टू बी पेड ओनली ऑन फिक्स कैपिटल एंड नॉट ऑन द करंट अकाउंट बैलेंसेस. लेट्स सी फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स with regards to interest on capital. Very important, concentrate. As studied earlier, if the partnership agreement is silence as to the interest on capital, then no interest on capital will be allowed. पढ़ा हमने, no partnership deed or no provision in the partnership deed, no interest on capital will be provided. Second,
Subject to an agreement between partners in conformity with the partnership deed, interest on capital is to be provided only out of the profits of the firm. Therefore, if there is no profit, there will be no interest on capital. Very important point, guys. No provision in the partnership deed, no interest on capital. और दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? No profit, no interest on capital. Friends, interest on capital is the appropriation of profit. और प्रॉफिट अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब प्रॉफिट होगा. अरे भाई, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो आप उसका अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते. सो नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. If profit before interest on capital is less than the interest amount, then the available profit is shared by the partners in their capital ratio, as partners get profit by way of interest on capital only. अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना बांट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दो पार्टनर है, ए और बी. दोनों का 1,00,000 रुपए का कैपिटल है. दोनों को 10%, दोनों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. ए का अमाउंट हो जाएगा 10,000, बी का अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000. अब मान लो दोस्तों प्रॉफिट हो गया सिर्फ 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 15,000. सिर्फ 15,000 रुपया प्रॉफिट हुआ. क्या ये पूरा 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि पूरा 20,000 प्रॉफिट नहीं है. तो क्या होगा? जितना प्रॉफिट है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 15,000. क्या है कैपिटल रेशियो? इट इज इक्वल. क्या करेंगे? 7,500 विल गो टू ए एंड 7,500 विल गो टू बी. द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स in their capital ratio. Next. Now last point, very important. If the partnership agreement provides for interest on capital as a charge against profit. Now this is an important point. अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस होगा तो भी देना है, तो आपको लॉस भी अगर होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा. एंड इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा. अगर वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का होना जरूरी है टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अदरवाइज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. What is charge against profit and what is appropriation of profit? Charge against profit means PL के डेबिट में डालेंगे. Appropriation of profit मतलब दोस्तों PL appropriation के डेबिट में डालेंगे. I hope everyone is aware about these points. ठीक है. Now what will be the journal entry for interest on capital? First entry, interest on capital account debit to partners capital or current account. If they are maintaining fluctuating capital method, then partners capital. If they are maintaining fixed capital, partners current account में चला जाएगा. And guys, interest on capital will be nullified by transferring its balance to the profit and loss appropriation. Second entry हो जाएगी PL appropriation to interest on capital. So what will be the net entry? It will be PL appropriation account debit to partners capital account. Partners capital or current account as the case may be. Did you get that? चलो next. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स. इस ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स पढ़ने के पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे जितना हमने पढ़ा है उस पर. कम टू क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू. Ram, Rahim and Kareem are partners in a firm. Ram, Rahim and Kareem are partners in a firm. They have no agreement in respect of the profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by the partners and remuneration payable to the partners. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. First, तीन पार्टनर है दोस्तों. कौन? राम, रहीम एंड करीम. दे हैव नो एग्रीमेंट.
एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर्स। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, कौन आ जाएगा पिक्चर में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका यहां हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट, राम क्या कह रहा है? राम ये कह रहा है, राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। दोस्तों राम कह रहा है मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल दिया, मुझे मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए एट द रेट ऑफ 10%, और मुझे प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा चाहिए। रहीम और करीम एग्री नहीं कर रहे हैं। मुझे बताना दोस्तों, क्या हम ये दे सकते हैं? नो। अरे भाई, इफ देर इज नो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट विल कम इनटू द पिक्चर। पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली सेज नो एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वली। तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इक्वल होगा, ना कि कैपिटल रेशियो में। तो जो रहीम और करीम कह रहे हैं वो सही होगा। राम will not get interest on capital, he will get profit but in equal ratio. Second, रहीम कह रहा है, रहीम has devoted full time for running the business and demand salary at the rate of 500 per month, but Ram and Kareem do not agree. रहीम बोलता है, अब राम ने अपना क्लेम रखा तो रहीम भी कह रहा है कि मैं दिन भर बिजनेस पे बैठता हूं, संभालता हूं इसको, मुझे 500 रुपये महीने की सैलरी दे दो। राम और करीम एग्री नहीं करते, ठीक है, क्योंकि राम और करीम ने मुझसे पूछा था कि सर रहीम सैलरी मांग रहा है, दे सकते क्या? मैंने क्लियरली बता दिया उनको, एग्रीमेंट है क्या? वो बोले नहीं। तो नो एग्रीमेंट, नो सैलरी, नो रेमुनरेशन। डिड यू गेट दैट? नेक्स्ट, फिर करीम क्यों पीछे रहेगा? करीम ने भी बोला, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। करीम ने 2000 रुपया लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को। करीम कह रहा है मुझे ये लोन पर चाहिए पूरे 2000 के लोन पे 12% का इंटरेस्ट। क्या उसको ये 12% का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आ जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% ओनली। तो करीम जो 12% से मांग रहा है उसको 6% पर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, how shall you settle the dispute and prepare PL appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? divisible मतलब सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% रिजर्व में डाल देना है और बचा हुआ पार्टनर्स को बांट देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड क्लेम, ये सब एडजस्टमेंट के पहले दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट था 45,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या क्या जाएगा डेबिट में? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल में जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन बना, तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी में हम सारे फिगर्स डालेंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 45,000 का। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन 2000 पे 6%। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% रिजर्व में डाल देंगे। फिर उसके बाद भी जो बच रहा है दोस्तों वो हम लोग डाल देंगे कहां पर? वी विल शिफ्ट इट to the partners capital account as a distribution of profit. I hope everyone is getting this. आ जाओ फटाफट से दोस्तों इलस्ट्रेशन 1 पे। लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाएंगे दोस्तों वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली गाइस, वेरी वेरी क्विकली। सो फर्स्ट कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज 45,000 लिख देंगे।
पीएल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट, फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से फॉर्मेट बना लेना है। आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। Tell me quickly, guys, is the format ready? Is the format ready? Chalo, okay, starting with the question. Next, net profit 45,000 बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया 45,000। अब क्या क्या देंगे, सबसे पहले देंगे करीम को लोन पे इंटरेस्ट कितना 2,000 इंटू 6%, 120 रुपीज। 120 रुपीज विल बी गिवन एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन। लिख देंगे डेबिट साइड में टू करीम्स कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन 2,000 इंटू 6%, 120। 120 रुपया करीम को दे देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद क्या होगा 10% नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर टू रिजर्व। और कोई एडजस्टमेंट है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी का? कुछ भी नहीं देना है। दैट मीन्स गाइस 45,000 माइनस 120 ये पूरा की पूरा पार्टनर्स को जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट के 10% रिजर्व में डालने के लिए बोल रहा है वो। इट कम्स टू 4488 लिख देंगे। टू रिजर्व्स, विच रिजर्व? जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व 10% of 44,880, it comes to guys 4488। it comes to 4488। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है नो मोर एडजस्टमेंट्स। अब जो भी प्रॉफिट बचता है दोस्तों बांट देना है तीनों पार्टनर्स को। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इट विल बी इक्वल। व्हाई? देयर इज नो प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप डीड। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कितना बचा है भाई 45,000 minus 120 minus 4488 comes to 40,392 divided by 3, 13,464 will be distributed to each partner. So friends, let's close the balance 45,000 profit comes to 40,392. So guys, to profit transferred to capital account Ram 13464, Rahim 13464, and guys last Kareem 13464, total 40,392। I hope everyone got this। आई होप सभी को समझ में आया दोस्तों। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। कब पूछोगे लेकिन? कल। दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सभी ने ये लिख लिया है। Moving on to question number 2. Here is the question number 2. Let's see क्या दास्ताएं question 2 है। Question number 2. A and B start business on 1st January 2019 with a capital of 30,000 and 20,000। नया बिजनेस स्टार्ट किया A और B ने। कैपिटल कितना है 30,000 और 20,000। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capital at the rate of 6% per annum। ठीक है भाई। The remaining profits are to be distributed to the partners in the ratio of 5:3। ठीक है। During 2019, the firm earned the profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000। पूरा 25,000 का प्रॉफिट था दोस्तों। ड्यूरिंग द ईयर A withdrew rupees 8,000 and B withdrew rupees 10,000 for domestic purposes।
गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों पूरी जर्नल एंट्रीज नहीं देनी है, जर्नल एंट्रीज इज टू बी गिवन ओनली फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्रीज देनी है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? पहला सैलरी की एंट्री। अरे सैलरी क्या है? इट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ओनली ना, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहली एंट्री आ जाएगी सैलरी टू बी। दूसरी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरी एंट्री आएंगी बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तीन एंट्री होगी दोस्तों, सिर्फ तीन। अरे सर वो कैपिटल लाया उसकी एंट्री, वो ड्राविंग कर रहा ये ड्राविंग कर रहा उसकी एंट्री, सर ये कैपिटल ला रहा उसकी एंट्री। अरे मेरे भाइयों और बहनों क्या बोल रहा है, जरा सुनो तो सही ना यार। वो जर्नल एंट्रीज मांग रहा है ओनली एंड ओनली फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ उसको प्रॉफिट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होना, तो जितना उसको होना उतना ही दो ना, क्यों अपनी मन की होशियारी करते हो। चलो फटाफट से तीन ही जर्नल एंट्रीज आएंगी दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर अराउंड हाफ पेज। जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है दोस्तों हाफ पेज के लिए। आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। बना यार बच्चों जल्दी से फॉर्मेट। इज द फॉर्मेट रेडी? इज द फॉर्मेट रेडी? If everyone is ready with the format, give thumbs up. If everyone is ready with the format, give thumbs up. अरे सर ये प्री रिकॉर्डेड है, आपके थम्स अप हमारे थम्स अप आपको कैसे दिखेंगे? टेंशन मत लो दोस्तों, मुझे पता है कि कितना समय आप लोगों को लगता है। मैं मन ही मन इमेजिन कर लूंगा कि आपके थम्स अप कमेंट बॉक्स में आ गए हैं, और फिर मैं शुरू कर दूंगा दोस्तों। इतना तो दिल से दिल का कनेक्शन अब हो गया है हम लोगों का कि हम जान सकते हैं कि कितना समय आपको फॉर्मेट बनाने के लिए लगता है। यस गाइस, बी वेरी वेरी क्विकली, फटाफट से बना दो भाई, फटाफट से बना दो भाई। ओके ओके ओके, चलो लेट्स बिगिन एवरीवन, लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा वो होगा सैलरी। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 500 पर मंथ, मतलब 6000 ईयर। एंट्री हो जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 6000। हियर इज द फर्स्ट एंट्री गाइस, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6000 to be is capital 6000, being salary paid to be at 500 per month. Thereafter guys, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। 30,000 पे 6% कितना होगा भाई? ए को मिलेगा 1800, बी को मिलेगा 20,000 पे 6% 1200। सो फ्रेंड्स एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल 1800 टू बी इज कैपिटल 1200। हियर इज द सेकंड जर्नल एंट्री गाइस, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3000 to is capital 1800 to b is capital 1200, being interest on capital credited to partners, being interest on capital credited to partners. Next, एनी आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन रिमेनिंग? नहीं, सब कुछ हो गया दोस्तों। अब फाइनल जितना प्रॉफिट बचा है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जरा मुझे बताना भाई कितना प्रॉफिट बचा? टोटल प्रॉफिट था 25,000 रुपया, उसमें से हमने बी को सैलरी दे दिया 6,000 और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 3,000। ठीक है, बचा कितना दोस्तों?
बचा है 16,000, किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3। मतलब दोस्तों एक हिस्सा 2,000 का। A will get 10,000 and B will get 6,000 rupees. Final entry. PL appropriation account debit to A's capital 10,000 to B's capital 6,000, total 16,000. PL appropriation account debit 16,000 to A's capital 10,000 to B's capital 6,000. Being a balance profit credited to partners in their profit sharing ratio. I hope everyone got this. ये 3 एंट्रीज आ जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्रीज बोली है, इसलिए हमने किया है। अगर वैसे नहीं कहते वो, तो कैपिटल लाने की भी जर्नल एंट्री होती। क्या होती है एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और ये जो ड्रॉविंग है उसकी भी एंट्री हो जाती दोस्तों। क्या हो जाती है एंट्री? ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। आई होप एवरीवन गॉट दिस। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे दोस्तों। A and B start business on 1st July 2019 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at the rate of 6% per annum. The remaining partners are to be distributed amongst the partner in the ratio of 5:3. During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. During the year, A withdrew rupees 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purposes. Prepare PL appropriation. देखो हमारे साथ स्कैम कर रहा है दोस्तों, ये हमारे साथ स्कैम कर रहा है। वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 में था वही क्वेश्चन नंबर 3 में है। अच्छा यहीं बोल सकता था वो, यहीं बोल सकता था वो कि भाई डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री मार दे और हमारे लिए पीएल अप्रोप्रिएशन भी बना ले, लेकिन नहीं, इनको तो क्वेश्चंस बढ़ाने स्टडी मटेरियल में, लिख दिया उन्होंने अलग क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे देखते हैं, आगे भी ये स्कैम किया क्या उन्होंने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो वाला क्वेश्चन। देखो अब वापिस सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैपिटल अकाउंट बना लो पार्टनर का ए और बी का। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, यही लिख देता कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की एंट्रीज दो, पीएल अप्रोप्रिएशन दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो। अरे तीनों चीज एक साथ मांगता तो क्या हम नहीं देते? क्या बिल्कुल देते, लेकिन नहीं, इनको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं। यहाँ पूछ लिया डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पूछ लिया अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे पूछ लिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग मांग रहा है ना, हम भी उसको अलग अलग देंगे, हम भी उसके रास्ते पे चलेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से होगा दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। अब हम भी यहाँ पे सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। चलो अब मुझे बता दो भाई, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? ब्रेन है तो भी यूज नहीं करना है अब, क्यों? अरे सब तो कर लिया ना। अरे भाई जर्नल एंट्री मार ली मैंने, क्रेडिट साइड में 25,000 आ जाएगा, डेबिट साइड में 20 कैपिटल आ जाएगा सैलरी के लिए, ए और बी कैपिटल आ जाएगा इंटरेस्ट के लिए, और बचा हुआ पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगा एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल गाइस, बना लेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर अराउंड 6 to 8 लाइन्स। दोस्तों फटाफट से 8 लाइन के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, जल्दी बनाओ। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस एंड आई होप द फॉर्मेट इज रेडी। Give me thumbs up if the format is ready. Chalo, I hope the format is ready, guys. I hope the format is ready. Okay, let's begin. Let's begin. लिख देंगे दोस्तों क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि भाई पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहां से आता है? ये आता है पीएल अप्रोप्रिएशन से ही। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दोस्तों लिख देंगे बाय पीएल 25,000,
अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड गाइस। फर्स्ट सबसे पहले दे देंगे बी को सैलरी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट सैलरी 500 इंटू 12 6000, 500 इंटू 12 6000। उसके बाद दोस्तों दोनों को इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे वर्किंग किया था हमने, ए को 1800 और बी को 1200, ठीक है। सेकेंड एंट्री गाइस, टू ए इज कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट 1800, टू बी इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट इंटरेस्ट 1200। अब कितना बचा, 16000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10,000 और 6,000 लिख देंगे फ्रेंड्स। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कितना बचेगा, 16,000। कैसे बांटेंगे, ए को देंगे 5/8 10,000 और बी को देंगे 3/8 6,000, आउटर कॉलम 16,000, टोटल 2525। आई होप एवरीवन गॉट दिस। आई होप एवरीवन गॉट दिस। 25,000 का प्रॉफिट हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपके स्क्रीन पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भाई, एक और जिद उसकी पूरी कर देते हैं, एक और जिद उसकी पूरी कर देंगे दोस्तों, एक और जिद उसकी पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ के हम हमारा कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे और दोनों का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे भाई तो ये भी आएगा और ड्रॉविंग्स भी आएगी, ठीक है ना, ये ड्रॉविंग्स भी आएगी, ठीक है। सो भाई बना लो। सर कंबाइंड बनाए या अलग अलग, कंबाइंड बनाओ, क्यों समय की बर्बादी करते हो मेरे भाइयों और बहनों, कम समय में हमको काम करना है, 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, तो क्यों अलग अलग बना के टाइम खोटी करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। सो गाइस बना लो फटाफट से। Partners capital account, particulars AB, particulars AB. I want this format to be around 8 lines, 6 to 8 lines का ये फॉर्मेट बन जाएगा दोस्तों, फटाफट से बना लेना है 6 to 8 lines, 6 to 8 lines of partners capital account. I hope everyone is ready with the format. I hope everyone is ready with the format. Chalo, great. I'm starting with the question. A and B started business on 1st January 2019 with a capital of 30,000 and 20,000. Journal entry, cash oblique bank account debit to A's capital to B's capital. कर दो लेजर पोस्टिंग, कर दो लेजर पोस्टिंग। बाय कैश oblique बैंक, A 30,000, B 20,000. Next, according to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. B को 500 रुपया पर मंथ सैलरी दे देना है, कहाँ आएगा, बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट सैलरी 6,000, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट सैलरी 6,000। नेक्स्ट, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल एट 6% पर एनम, 1800 और 1200 आता है दोस्तों, लिख देंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिलेगा 1800, बी को मिलेगा दोस्तों 1200, ए 1800, बी 1200, ठीक है। नेक्स्ट, the remaining profits are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3। कितना बचा भाई प्रॉफिट, 16,000, हमने तो पहले ही निकाल लिया है, ठीक है, कर दो फटाफट। बाय पीएल अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा दोस्तों 6,000, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 6,000।
नेक्स्ट, thereafter, guys, last part, during the 2019, the firm under profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. ये कहीं पर भी नहीं आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000 एंड बी विड्रू 10,000. डेबिट साइड में लिख देंगे दोस्तों टू ड्रॉविंग्स, ए का 8,000, बी का 10,000. फ्रेंड्स, द इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. ए और बी दोनों का लेजर क्लोज करो, कितना बैलेंस आ रहा बताओ. बी दोस्तों, बी का टोटल कितना हो रहा है क्रेडिट साइड का? 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000, इट कम्स टू गाइस 33,200. ए का क्रेडिट साइड बढ़ा है, टोटल 30,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000, इट कम्स टू 41,800. लिख देंगे इसको डेबिट साइड में. ए के कॉलम में 41,800, बी के कॉलम में 33,200. बचा हुआ क्या होगा? इट विल बी बैलेंस इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. बी का होगा 33,200 माइनस 10,000, 23,200. एंड फ्रेंड्स, ए का होगा 41,800 minus 8,000, 33,800. I hope everyone got this. I hope everyone got this. So guys, we completed 4 questions, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन था, उसको इंस्टीट्यूट ने 3 अलग अलग पूछ लिया. ठीक है, चाहते तो पूछ सकते थे एक ही क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं दोस्तों, इग्नोर करेंगे. उसने अलग अलग मांगा, हमने भी अलग अलग दे दिया. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स. What is drawings? Drawings means any amount withdrawn by partner, any amount withdrawn by partner from the partnership firm. क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फंड्स कौन यूज करता है? फर्म. ठीक है, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देता है. अब ड्रॉइंग्स में कौन पैसे यूज कर रहा है? पार्टनर. किसके पैसे है? वो फर्म के. तो क्या फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा? यस, ले सकता है, बट ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स. लेट्स सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. Drawings means the amount withdrawn in cash or in kind for personal purpose. Drawings may be against profit or against capital. मैंने एक्सप्लेन किया था. ड्रॉविंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में से विड्रॉ कर लिया, इट विल अपीयर ऑन दी डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट. और अगेंस्ट कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल में जाएगा. Interest on drawings is to be charged from the partners only when the partnership agreement provides for the same. Is that fine? No provision in the partnership deed, no interest on drawings will be collected. Interest on drawings is to be calculated with reference to the time period for which the money was withdrawn and used by the partner. जितने पीरियड पार्टनर ने यूज किया उतना इंटरेस्ट उसको लगेगा. Depending upon the availability of information, the interest on drawings in various cases may be calculated as follows. दोस्तों, these are the various cases जहां पे interest on drawings आपको निकालना है. पहला, where date of drawings and the amount of drawings are various dates are clearly stated. अलग अलग random date पे drawing की है तो हम यूज करेंगे product method. अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आर नॉट गिवन, अगर डेट दिया हुआ नहीं है तो ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं. वेयर द फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, then interest on drawings is to be calculated on the total amount for the average period. ये एवरेज पीरियड नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला दिया गया है. Where the fixed amount is withdrawn during the middle of every month during the 12 months, then guys the interest on drawings is to be calculated on total amount for the average period. ये average period के लिए formula next page पे दिया गया है. And guys, where the fixed amount is withdrawn on the last day of every month or quarter during the period of 12 months, the interest will be calculated on the average period. Average period का formula next page पे दिया गया.
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लेट्स सी एवरेज पीरियड हर केस में क्या होगा। एवरेज पीरियड इन अबव केसेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फर्स्ट, ए फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर। अगर दोस्तों हर महीने के स्टार्टिंग में या हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में करोगे तो क्या होगा, लेट्स सी। टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग इन मंथ्स प्लस टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब कहा जा रहा है, मान लो 10,000 रुपया पार्टनर हर महीने के पहले दिन विड्रॉ करता है, हर महीने के पहले दिन विड्रॉ करता है, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा। टोटल पीरियड ऑफ ड्राइविंग इन मंथ्स, एक साल में 12 महीने। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स, दो ड्राइंग्स के बीच में कितना डिफरेंस है, हर महीने अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो हर ड्राइंग के बीच में एक महीने का गैप है, डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 13/2, 6.5 मंथ्स आ जाएगा दोस्तों। अगर हर महीने के स्टार्टिंग में किया तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको लगाएंगी पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट, वही अगर मान लो दोस्तों, वही अगर रहेगा हर क्वार्टर के पहले दिन, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, लिख दिए हमने। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स, अब क्वार्टरली ड्राइंग है दोस्तों, तो दो ड्राइंग के बीच में कितना गैप रहेगा, 3 महीने का गैप होगा। तो अब यहां पे क्या कर देंगे, हम यहां पे कर देंगे दोस्तों 3 महीना। वो कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 15/2, वो हो जाएगा 15/2, 7.5 मंथ्स। सो दोस्तों, अगर हर महीने के पहले दिन 6.5 महीने, हर क्वार्टर के पहले दिन 7.5 महीने। नेक्स्ट, इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, हर महीने के बीच में या क्वार्टर के बीच में अगर करेंगे तो टोटल मंथ्स ऑफ ड्रॉविंग्स 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ्स। मतलब दोस्तों, हर क्वार्टर के या हर महीने के बीच में अगर कर रहे हैं मिडल ऑफ द मंथ तो 6 महीने का लगेगा। नेक्स्ट, ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड क्वार्टर, तो इतना ही डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब मान लो दोस्तों हर महीने के आखिरी दिन विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तो क्या हो जाएगा, एक साल में कितने महीने, 12। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉविंग्स 1 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा 11/2, 5.5 मंथ्स। वही अगर हर क्वार्टर के आखिरी में, विड्रॉ कर रहा है तो 12, दो ड्रॉविंग्स के बीच में कितना गैप, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाएगा 9/2, 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला नाउ। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, मैं आपको पूछूंगा मुझे जवाब दो। अगर रैंडम डेट्स दिए गए हैं तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर डेट दिया हुआ नहीं है तो कितने महीने का लगाएंगे, 6 महीना। अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ हुआ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, तो मंथ अगर है भाई, मंथ अगर है तो वो हो जाएगा 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, और अगर क्वार्टर है तो इट विल बी 7.5 मंथ्स। फिक्स अमाउंट टू बी विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर मिडल में दोस्तों तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एंड गाइस, अगर आखिरी में कर रहे हैं, लास्ट डे पे कर रहे हैं, तो लास्ट डे ऑफ मंथ अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 5.5 मंथ्स। एंड गाइस, हर महीने के क्वार्टर के आखिरी में करोगे तो 4.5 मंथ्स। आई होप एवरीवन गॉट दिस। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन। ठीक है, चलो। सो लेट्स सी, जर्नल एंट्री क्या होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मंगाना है भाई उनसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएल अप्रोप्रिएशन। नेट एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? नेट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी करेंगे, लेकिन कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थियरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? यस। किस रेट पे? एज स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। जो लोग कह रहे हैं कि सर 6% पे मिलेगा, रॉन्ग। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई प्रोविजन नहीं है बच्चों तो 6% पे मिलेगा, वरना नहीं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? एट द रेट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, एंड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, interest on loan will be given at the rate of 6%. Next, if there is an agreement as to the rate of interest, then partner is entitled to an interest on loan at an agreed rate of interest. But if there is no agreement as to the rate of interest, then as per section 13D of the Indian Partnership Act, partner is entitled to interest on loan at the rate of 6% per annum. Very important point, it may be noted that interest on partners loan is a charge against profit. मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना ही होगा. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and not an appropriation out of profit. In other words, interest on partners loan is to be allowed whether there are profits or not. ठीक है. What will be the journal entry? Interest on partners loan account debit to partners loan, profit and loss account debit to partners loan. दोस्तों क्या डेबिट हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वाई? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. Now next, salary or commission to a partner. Whether a salary or commission can be given to a partner? Yes, but only if partnership deed provides. Salary or commission to a partner is allowed if the partnership agreement provides for the same. Salary or commission to a partner is an appropriation of profit and not a charge against profit. इसका मतलब क्या हो गया? No profit, no salary. No profit, no commission is payable. In other words, it is to be allowed only if there are profits. What will be the journal entry? Salary or commission to partners capital or current account. Salary को PL appropriation में डाल देंगे. PL appropriation to salary or commission. I hope everyone got this. Now guys, two concepts are remaining, guarantee of minimum profit and past adjustments. ये दो कंसेप्ट बाद में पढ़ाएंगे. अब कल मैं सबसे पहले लूंगा दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स पे क्वेश्चन, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही दोस्तों. आई होप यू लव दिस प्री रिकॉर्डेड सेशन. कोशिश करेंगे फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट करने की. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस. Guys, do not forget to join tomorrow's inventory valuation session. The most important lecture of inventory valuation is going to be held tomorrow, जहां हम questions करेंगे on reconciliation of stock, which is one of the most important point. So that's it guys. मिलता है कल सुबह 7:45 AM for inventory valuation. Good night everyone. Take care. Bye bye. See you soon.